Hello everyone, I hope you all are well. Today we will start to make a simple logo in Photoshop. ये basically simple logo होगा हम जो Photoshop में create करेंगे because आपका basic level है so उस हिसाब से मैं basic logo start करूँगा. Okay, first of all you have to go to the create new and select a size. First of all you have to select the pixels and give a value 800 width and 800 height. Resolution should be 300 and color mode RGB. Okay, now click on create. This is your canvas 800 pixels into 800 pixels. Okay, so first step is I want to make a center point. So मुझे इस कैनवस में सबसे पहले एक सेंटर पॉइंट क्रिएट करना है. उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक गाइड क्रिएट करूंगा. आई हैव टू create a guide. So you have to go to the option view and this option new guide. Now you know that my canvas size is 800 into 800 pixels. So मैं इसे अब हाफ में डिवाइड करूंगा तो हाफ क्या बनता है 400 pixels. So I will type vertically 400 px. Okay, now you can see the center line. Okay, now again I have to make a horizontal line. So you have to go to the new guide again, select horizontal. Again you have to type the value 400 pixels. Now click on OK. Now अब आपको इस पे center point clear है. Now you can see the center point in your canvas. Okay, next step is you have to go to the this option, shapes option, like rectangle tool, ellipse, triangle, polygon. So I want to make a circle, so that's why I will select ellipse tool. Okay, मैं ellipse tool select करूंगा because मुझे एक circle create करना है. I will select my ellipse tool. Okay, remember one thing here, path की जगह आपका shape होना चाहिए. Okay, select your shape. Now go to the center point and click on it. When you click on it, a new window will open and it will ask the value of your circle कि आपका सर्कल का साइज क्या होना चाहिए. तो आप जो कैनवस का साइज था आप उस हिसाब से रखो 800 into 800 pixels. Okay, now remember one thing, यहाँ पर फ्रॉम सेंटर पे टिक होना चाहिए, चेक होना चाहिए, बिकॉज अगर आप फ्रॉम सेंटर पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर से ही सर्कल बनाएगा. देन क्लिक ऑन ओके. नाउ यू कैन सी मेरा सर्कल बन चुका है, बट इसके अंदर वाले पार्ट में कलर नहीं है और बाहर इसका स्ट्रोक ऑन है. तो इसके लिए हम चेंज करेंगे. गो टू दिस ऑप्शन फिल. फिल आप देख रहे हो रेड लाइन है, इट मीन्स दैट योर फिल कलर इज ऑफ. सो सेलेक्ट दिस ऑप्शन एंड चेंज योर फिल कलर. मैंने यहाँ चेंज किया अपना फिल कलर तो येलो आ गया. अब इसके साथ स्ट्रोक है, स्ट्रोक को क्लिक करूंगा और इसको मैं स्विच ऑफ कर दूंगा. यहाँ से मेरा स्ट्रोक बंद हो चुका है. ठीक है, नेक्स्ट अब मुझे इसके अंदर एक और सर्कल चाहिए. तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, गो टू द एलिप्स टूल, क्लिक ऑन द सेंटर पॉइंट. This time I will put the value of 750 pixels into 750 pixels. Now click on OK. Circle बन चुका है, but this time I will give the value in stroke because I want a little bit stroke. So go to the stroke and I will select white color and I will change the value of my size of my stroke like this. मुझे स्ट्रोक की वैल्यू चेंज की है मैंने, उसकी वजह से इसका विड्थ साइज जो है चेंज हुआ है. ओके, आई होप दिस पार्ट क्लियर. ओके, नाउ अगेन आई वांट अ न्यू सर्कल.
जो मेरा सर्कल साइज है वो मुझे 550 इंटू 550 पिक्सल चाहिए ताकि इस जगह पे वो आए। तो उसके लिए अगेन से एलिप्स टूल लूंगा, क्लिक ऑन द सेंटर पॉइंट अगेन। Again you have to select 550 into 550 pixels. So okay, now you can see। अब आपका एक बड़ा सर्कल है वो 800 पिक्सल्स का है, सेकंड सर्कल 750 एंड थर्ड सर्कल इज योर 550 into 550। ओके, अब मुझे 750 into 550 के बीच में टेक्स्ट लिखना है। तो इसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा टेक्स्ट है वो इसी तरह सर्कल में आए। सो यू हैव टू गो टू द ऑप्शन अगेन एलिप्स टूल। ओके, सेलेक्ट एलिप्स टूल। ओके, now this time you have to change this shape to path। why? because अब हम शेप नहीं बनाएंगे, हम एक पाथ क्रिएट करेंगे जिसके ऊपर हम अपना टेक्स्ट लिखेंगे। ओके, we will create a path। okay, now click on the center again। okay, now you can give the value in between। I will give the value of 600 into 600। now okay, अब आप देख रहे हो यहाँ पर एक पाथ क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब हम इसके ऊपर टेक्स्ट लिखेंगे। तो उसके लिए टेक्स्ट लिखने के लिए हमारे पास एक सिंपल टूल है यहाँ पर, टाइप टूल। क्लिक ऑन द टाइप टूल। फर्स्ट टूल इज हॉरिजॉन्टल टाइप टूल। ओके, नाउ गो टू दिस पॉइंट। जब आप इस पॉइंट के पास जाओगे, आप देखो, ध्यान से देखोगे एक छोटा सा आर्क हो रहा है, चेंज हो रही है आपका आइकन। जब ये आइकन चेंज होगा, ये आर्क वैल्यू आएगी, तो इसको आप सिंपल लेफ्ट क्लिक कर दोगे। When you click on it, now you can see your text is visible। आपका जो टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग आ चुका है सर्कल के। ओके, तो now you can type here, type your company name। मैंने लिखा है टाइप योर कंपनी नेम। यू कैन टाइप हेयर योर कंपनी नेम। आप कोई भी कंपनी का, जो आप कंपनी का नाम रखना चाहते हो, वहां पर आप लिख सकते हो। ओके, क्लियर। अब आप देख रहे हो कि जो आपका टेक्स्ट है वो इस साइड है, मुझे इसको इस साइड लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करना है। उसके लिए क्या करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट दिस होल टेक्स्ट। बाद अगर जब आप 2-3 बार इसके ऊपर आकर क्लिक करोगे, ये तो ऑटोमेटिकली ये सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो सकता है। और अगर आप सिंगल क्लिक करते हो और प्रेस कंट्रोल ए, तब भी ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। नाउ यू कैन गो टू द ऑप्शन दिस वन। टेक्स्ट टूल के साथ ही बिल्कुल एक ऑप्शन है, दो ऑप्शन होंगे यहाँ पर, पाथ सिलेक्शन एंड डायरेक्ट सिलेक्शन। तो आपको डायरेक्ट सिलेक्शन सेलेक्ट करना है। ओके, यू हैव टू सेलेक्ट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब आप इसके जब पास जाओगे तो आपका आइकन फिर से देख रहे हो आप चेंज हो रहा है। ठीक है, जब आप ये आइकन आएगा, ठीक है, एरो जब उसका टी की तरफ होगा, तब आपको तो क्लिक करना है एंड मूव डाउन। ओके, एक सेकंड, यहाँ तक मूव किया, क्लियर। एंड नेक्स्ट, अब यहाँ से क्लिक एंड मूव डाउन। ओके, अब ये टेक्स्ट रोटेट तो हो चुका है, बट इसमें आप देख रहे हो कि मेरा जो कंपनी नेम है वो शो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेलेक्ट योर टेक्स्ट। ओके, एंड इसका जो साइज है यहाँ से आप रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, आप सबको सिलेक्ट करके एक साथ, और वैल्यू आप दे दो 12। ओके, और अब थोड़ा सा फिर से इंक्रीज करो ताकि वो पूरा लास्ट तक चला जाए। ठीक है, अब देखो, अब मैंने टेक्स्ट का साइज इंक्रीज किया, बट नेम फिर से चला गया। तो मैं अपना जो टेक्स्ट का साइज है वो रखूंगा 14। ओके, अब जो बाकी वाली स्पेस है, इसको कैसे इंक्रीज करूंगा, फिल करूंगा बेसिकली। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे हो वीए। गो टू दी वीए, क्लिक ऑन दिस एंड स्क्रॉल अप। हल्का सा स्क्रॉल अप करोगे तो ये
जो आपके टाइप के टेक्स्ट के बीच में जो स्पेस है उसको इंक्रीज कर देगा. ओके, आई होप दिस पार्ट क्लियर. ओके, next step is now I will add text here. So you can go to the option this one, path. आप यहाँ पर path option देख रहे हो, you can go to the path. Okay, यहाँ second first option है आपका work path. When you click on the work path, आपका जो path है वो आपको visible हो जाएगा, जो आपने already path create किया हुआ है. ठीक है, तो अब again you have to go to the type tool. Okay, now come to this point. जब फिर से वो आंख आपकी शो होगी एंड क्लिक ऑन दिस. ओके, नाउ अगेन यू कैन टाइप कंपनी टैग लाइन. ओके, टैग लाइन, मैंने कंपनी टैग लाइन लिखा है. जो आपकी कंपनी टैग लाइन आप लिखना चाहते हो वो आप लिखोगे, आप कंपनी टैग लाइन नहीं लिखोगे. ओके, अब इसको फिर से हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल ए, सेम टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन. ओके, क्लिक एंड मूव. ओके, क्लियर. नाउ select this. अब आप इसको प्रॉपरली सिलेक्ट करके वैसे ही, और इसमें थोड़ी सी जो स्पेसिंग है उसको इंक्रीज करोगे. ठीक है, ओके. बट अब मुझे, आप इसमें देख रहे हो कि जो ये जो टेक्स्ट है मतलब उल्टा है शेप में, तो मुझे इसको बिल्कुल सीधा करना है इस तरह. तो वो मैं कैसे करूंगा? अगेन यू कैन सेलेक्ट योर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एंड जस्ट गो हियर, क्लिक एंड हल्का सा ऊपर मूव करोगे तो ये इस साइड आ जाएगा. ओके, लाइक दिस. अब ये स्ट्रेट हो चुका है. ओके, अब मैं इसको अपना नीचे इस जगह पे लेके आना चाहता हूँ, तो उसके लिए आई विल सेलेक्ट माय होल टेक्स्ट. अब आप यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हो ए, एक बड़ा ए है, स्मॉल कैपिटल ए एंड स्मॉल ए. नाउ क्लिक ऑन दिस एंड स्क्रॉल डाउन. जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये इसके नीचे यहाँ तक आ जाएगा. ओके, और इसकी स्पेसिंग अगर आपको इंक्रीज करनी है तो आप ऐसे हल्की सी इंक्रीज कर सकते हो. ओके, अब आप देख रहे हो कि आपका टेक्स्ट प्रॉपरली पढ़ा जा रहा है. पहले तो क्या हो गया था, उल्टा हो गया था, तो आप स्टडी नहीं कर पा रहे थे उसे. अब आपका ठीक है. टाइप योर कंपनी नेम एंड कंपनी टैग लाइन. ओके, अब इसमें दो चीजें और करेंगे हम. यहाँ पर एक हल्का सा सर्कल बनाएंगे. वो कैसे बनाएंगे? गो टू द लेयर एंड क्रिएट अ न्यू लेयर. यहाँ पर आपने एक सर्कल क्रिएट किया. ओके, यहाँ मैं कलर करूंगा व्हाइट एंड कंट्रोल डी डी सेलेक्ट किया. ओके, और मैं इसको यहाँ पर मैंने एडजस्ट किया. ओके, इन दोनों के बीच में छोटा साइज कम भी कर सकते हो थोड़ा सा. हाँ, कंट्रोल टी के साथ, यू नो ऑलरेडी. ओके, नाउ आई विल मेक अ कॉपी ऑफ दैट. सो सेलेक्ट योर मूव टूल, press alt, pick and move this. Okay, clear. आई होप आपको ये पार्ट क्लियर है. ओके, अब इसमें हम सेंटर में कोई इमेज लगाएंगे. तो वी हैव टू गो टू द फाइल, to import my image, open and I'm selecting this image. Okay, आप कोई भी अपने कंपनी के जो नेम रखोगे, जो भी टैग लाइन लगाओगे, उसके हिसाब से कोई भी आप इमेज नेट से सर्च कर सकते हो. ओके, आई एम सेलेक्टिंग दिस इमेज, ओपन. ओके, अगर ये लॉक्ड होगी तो आपको अनलॉक कर देना. सेम वही स्टेप, सेलेक्ट एंड मूव हियर.
ओके, आप इसको सेंटर में रख के इसमें एक छोटा सा स्टेप करना है ताकि इसकी थोड़ी सी ड्रॉप शेडो आ जाए पीछे बैकग्राउंड में। तो यू हैव टू गो टू दी दिस ऑप्शन एपेक्स and click on drop shadow. Okay, click on this. Now change your color to white. Okay, आप ये जो भी कलर की ड्रॉप शेडो रखना चाहते हो आप रख सकते हो। ओके, मेरा जो टेक्स्ट है, जो सर्कल है वो व्हाइट है तो मैंने इसलिए व्हाइट ही रखी है। ओके, सो इसका आप थोड़ा सा वैल्यू इंक्रीज कर सकते हो ड्रॉप शेडो की। ओपेसिटी, डिस्टेंस ज्यादा करना है डिस्टेंस कर सकते हो। ओके, नाउ यू कैन ऐड अ स्प्रेड। अगर आप उसको ज्यादा स्प्रेड करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। ओके, एंड साइज, दिस इज अप टू यू। ओके, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे वैल्यू दे सकते हो। सो आई होप आपको ये जो बेसिक लोगो है वो क्लियर होगा। ओके, अब इसको सेव कैसे करना है यू ऑलरेडी नो दैट। गो टू दी फाइल, ओके, एंड सेव एज। नाउ गो टू दी डाउनलोड्स। ओके, जहाँ भी आपको सेव करना है वो मैंने जगह और लोकेशन बताई। जो भी आपको नाम रखना है आप नाम रख सकते हो, लोगो। ओके, एंड यहाँ पर आपको एक तो पीएसडी फाइल जो फोटोशॉप वाली फाइल है वो सेव करनी है। ओके, हाँ, सेव पे क्लिक कर दोगे और दूसरी फाइल मुझे चाहिए इसकी पीएनजी। सो पहले में हमने किया था पोस्ट कार्ड में जेपैग फाइल। सो गो टू दिस ऑप्शन और यहाँ पर आपको मिलेगी पीएनजी फोटोशॉप का, ये दिस वन पीएनजी। इस बार मुझे पीएनजी फाइल चाहिए तो यू हैव टू सेलेक्ट दिस। ओके, एंड सेव। एंड लार्ज फाइल फॉर्मेट होना चाहिए आपका। ओके, नाउ यू हैव टू गो टू द डाउनलोड ऑप्शन एंड आप यहाँ लोगो देखोगे आपका आ चुका है। एंड ओपन दिस। ओके, अब आप इसको ड्रैग भी करोगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसको एक बार अप्लाई करते हैं हम किसी में। ठीक है, गो टू दी फाइल, ओपन। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं दिस इमेज। ओके, एंड ओपन इट। अब मैंने इसमें ओपन किया। नाउ आई विल गो टू दी ओपन, सेलेक्ट माय लोगो। ओके, एंड लॉक्ड है, डबल क्लिक। ओके, अनलॉक एंड शिफ्ट इट टू दिस। ओके, क्लियर। अब आप देख रहे हो इसमें व्हाइट बॉक्स आ गया, हमने एक गलती की है। ठीक है, सॉरी, मुझे आपको बताना भूल गया। तो इसको हम पहले बैक स्पेस से इसको ट्रीट करते हैं। अभी आपका पूरा लोगो है। अब आपने क्या करना है, जो लास्ट में जो आपकी बैकग्राउंड लेयर है ना, इसको स्विच ऑफ कर दो। ओके, अब ये क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट। सिर्फ आपका ये लोगो ही सेव होगा। अगेन गो टू द फाइल, ओपन एंड सॉरी, फाइल, सेव एज, डाउनलोड्स, गो टू द पीएनजी। ओके, एंड मैंने इसको रिप्लेस कर दूंगा मैं यहाँ से। यस, रिप्लेस नहीं हुआ, सो हम इसका नेम चेंज कर देते हैं, लोगो फाइनल। ओके, एंड सेव। ओके, नाउ अब मैं फिर से ड्रैग करता हूँ इसको यहाँ से। हम फिर से इसको ओपन करते हैं, लोगो फाइनल, ओपन। ठीक है, अब मैं इसको ड्रैग करूंगा एंड ड्रॉप करूंगा। देखो अब आपको वो ब्राइट बैकग्राउंड नहीं आएगी। ठीक है, आप यहाँ लोगो लगा सकते। क्लियर, आई होप दिस पार्ट क्लियर। एक आपको पीएनजी सेव करनी है और एक सिंपल सेव एज फोटोशॉप फाइल लोगो। ओके, एंड सेव। ओके, ठीक है। अब डाउनलोड्स में आपको ये दो फाइलें, मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, आई विल शेयर यूर लिंक। आपको ये दोनों फाइलें उस पे अपलोड करनी है। ओके, आई होप ये आपको लोगो क्लियर हो गया होगा।
सो थैंक यू सो मच।